Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, date is 26 August 2021, and I am teaching you chapter number 7. And name of the chapter, The Food We Eat. So, student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, the topic which I covered, that is the raw and cooked food and what are the healthy eating habits. Okay, what are the healthy eating habits? So we have completed this chapter. Now today we will start with the key words of the chapter. Nutrients. What are nutrients? Useful substances in our food that our body needs, that are known as nutrients. So nutrient is, what is nutrients? Useful substances in our food that our body needs. So it means that our body was unable to produce nutrients are not produced inside our body. इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि nutrients हमारी बॉडी के इनसाइड प्रोड्यूस नहीं होते हैं. So how they come in our body? By eating different types of a food. जब हम different types of food eat करते हैं तो वहाँ से हमको nutrients मिलते हैं. Is it clear? So nutrients are the important or useful substances in our food that our body needs. What is the complete food? The food that contain all the nutrients in a right amount. You can say जैसे milk क्या है, complete food है. मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं. मिनरल जैसे कैल्शियम है जिससे आपके बोन स्ट्रॉन्ग रहते हैं, टीथ स्ट्रॉन्ग रहते हैं. ठीक है, इवन इसमें वाटर भी है. दैट्स अ कंप्लीट फूड. सो व्हाट इज अ कंप्लीट फूड? So these are the key words of the chapter. Food that contains all the nutrients that our body needs. जंक और फास्ट फूड. जंक और फास्ट फूड जो होते हैं, फूड दैट लेक न्यूट्रेंट्स, इनमें न्यूट्रेंट्स नहीं होते. और आजकल स्पेशली बच्चे हेल्दी नहीं हो रहे हैं. उसका रीज़न क्या है कि बच्चे जंक फूड, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, नूडल्स, ये सब पे ज़्यादा उनको, क्योंकि ये फूड बड़े टेस्टी होते हैं बट इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज़ नहीं होती हैं. ठीक है. सो व्हाट इज जंक और फास्ट फूड? और फास्ट फूड, food that lack nutrients. ठीक है. Now after that, things to remember are given. These are very important points. If you, after completing the chapter, student,
please read this point. If you are able to understand this point, it means the all the topics which the teacher explained you at the time when the teacher is teaching the chapter, it means all the topics are clear to you. So these are very important point. After completing the chapter, please read these points one or two times. First point is food gives us energy, help us to grow and keep us healthy and strong. Yes, why we eat a food? Because we do lot of activities in our day to day life, and for all these things we also require energy. And how we get the energy? By eating different kinds of food, and due to the food our body grow also, and due to the food, if we take a balanced diet, then our body is fit and healthy. So this is the first point. Next, food can be divided into three groups. So when we discuss about the food, student, then I explained you the food is divided into three groups. That is energy giving food, bodybuilding food, and protective food. So in energy giving food, which are the nutrients present in energy giving food, student? The nutrient presents are carbohydrates and fats. Okay, and when I am talking about the bodybuilding food, so which is the nutrient present in the food? So nutrient name is a protein. And when I am talking about the protective food, so which type of nutrient is present in the food? So nutrient present in protective food is vitamins and minerals. So these are the five nutrients. Okay, so these are the five nutrients which are required by our body. Next point is if you drink ample amount, अच्छा we should है you नहीं, we should drink ample amount of water. See, water is not a nutrient but it is very essential part of our body. ठीक है, वाटर न्यूट्रेंट नहीं है, जैसे और है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सब न्यूट्रेंट हैं, लेकिन वाटर न्यूट्रेंट नहीं है. लेकिन विदाउट वाटर हमारी बॉडी का फंक्शन ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ ए वाटर. ओके, आपके वाटर से ही आपका क्या होता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. जो न्यूट्रिएंट्स का पूरी बॉडी में सर्कुलेशन है वो भी वाटर से होता है. जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपकी जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो वो भी यूरिन फॉर्म में आपके बॉडी से बाहर हो जाता है. ठीक है, और वाटर ही आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. वाटर क्या करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. जब आप बहुत हॉट वेदर में होते हो तो एट दैट टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट लॉट ऑफ स्वेट फ्रॉम योर बॉडी. बहुत ज़्यादा बॉडी से पसीना आता है. तो ये पसीना जब आता है, जो हमारी बॉडी की हीट बाहर होती रहती है और इससे हमारी बॉडी क्या कूल रहती है. तो ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है. ठीक है, और जो आपका सलाइवा है, जब आप खाना खाते हो मुंह में कोई चीज़ हो जाती है जिससे फूड सॉफ्ट हो जाता है, तो वो सलाइवा का सिक्रेशन भी किससे होता है, वाटर ही से होता है. दैट इज द रीज़न water is a very essential part of diet. Okay, next is some food items are eaten raw, they also make us healthy. देखो कुछ फूड आइटम्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे. बहुत से फ्रूट्स हैं जो फल आप लोग खाते हो. ठीक है, तो वो हम लोग एज ए रा भी खाते हैं. कैरोट है, रेडिश है, ये भी हम लोग, कैबेज है, ये भी हम लोग रा खाते हैं. तो रा खाने से देखो, अगर हम चीज़ों को रा खाते हैं तो उनके, क्योंकि बेटा कुकिंग से क्या होता है, फूड बहुत टेस्टी हो जाता है. फूड क्या हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है. कुक करने से उसमें अगर जर्म्स हैं तो वो किल हो जाएंगे. लेकिन जो न्यूट्रेंट वैल्यूज़ होती है कुक करने से वो लेस हो जाती हैं. तो डैट इज़ द रीज़न अगर हम चीज़ों को रा खाते हैं, तो जिस तरह हम लोग बहुत से फ्रूट्स खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को भी खाते हैं, तो रा आप खाते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. क्योंकि कुक करने से फूड की न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या है, लेस हो जाती है. ठीक है, इसीलिए एक जगह मैंने पढ़ाया भी था कि ग्रीन वेजिटेबल्स को कट करने से पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लो. बहुत लोग वॉश करके, अगर आप उसको कट करके फिर वॉश करोगे तो उससे भी बहुत से न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी लेस हो जाती है. ठीक है, फिर वी शुड फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट. हेल्दी ईटिंग हैबिट से इसलिए कह रहा है कि, ठीक है, हेल्दी ईटिंग हैबिट बेटा ये इसलिए कह रहा है क्योंकि देखो अब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये न्यूट्रिएंट डिफरेंट टाइप्स के फूड से मिलते हैं. एक ही फूड से नहीं मिलते. एनर्जी गिविंग वाले अलग फूड हैं, उनके अलग नाम है. बॉडी बिल्डिंग अलग टाइप के फूड से मिलता है और विटामिन मिनरल अलग से मिलता है. तो हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए. इसके लिए मैंने आपको बैलेंस डाइट चार्ट भी बनाने के लिए बोला है.
क्योंकि तभी हम लोग फिट और हेल्दी रह सकते हैं। तो इसीलिए बोला है वी शुड फॉलो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, हमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अगर हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं तो हो सकता है, क्योंकि अभी हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे बेटा, जब ये न्यूट्रिएंट जो है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर बॉडी को ये न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, अगर लैक ऑफ हो जाते हैं, ये मतलब कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, तो हम लोग बहुत सी डिजीजेस से सफ़र करते हैं। तो ये आएगा तुम्हें हायर क्लास में, क्लास 5 में, तब इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, जिसको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। मतलब ऐसी डिजीजेज जो कि हमारी बॉडी में एक या उससे ज़्यादा किसी न्यूट्रिएंट्स के कमी से हो जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत सी डिजीज हैं जिनको डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। तो ये क्लास 5 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक की एक्सरसाइजेस डिस्कस करना। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर एंड आई एम टीचिंग यू ऑन पेज नंबर 37। सो इट्स माय रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक, ओपन पेज नंबर 37, और बेटा स्पेशली वीडियो देखते समय बुक रफ कॉपी एक पेंसिल सामने रखा करो। ठीक है, वो बात अलग है कि मैं ऑनलाइन क्लास में हम क्या सारे टीचर तुम लोग को एक एक कॉन्सेप्ट फिर से समझा देते हैं, बहुत से बच्चे वीडियो वॉच नहीं करते हो, बट रियल में ऑनलाइन का मीनिंग है सिर्फ आप डाउट पूछो। आपने वीडियो देखी, वीडियो का कौन वर्ड मीनिंग आपको समझ नहीं आया, कौन सा एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया, आप डाउट पूछो। आप लोग डाउट नहीं पूछते हो क्योंकि आप रेगुलर वीडियो वॉच ही नहीं करते हो। ऑनलाइन क्लास स्पेशली डाउट्स के लिए है, लेकिन आई नो बहुत कम बच्चे ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ मोर देन 112 हो गई है। उसके बाद भी ऑनलाइन मीटिंग में 60 और 70 के बीच में बच्चे आते हैं, मतलब 50 बच्चे ऐसे ही अलग हैं। ठीक है, तो वीडियोस नहीं देखोगे तो डाउट होगा नहीं। ये तो अलग है कि टीचर्स पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें भी दे देते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में भी, बट बेटर मेथड है कि आप वीडियो की 30 मिनट्स में जो जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं आप नोट कर लो रफ कॉपी में, और जब आपकी ऑनलाइन क्लास हो देन आप शाउट नहीं करोगे, यू विल रेज ए हैंड। माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो हैंड रेज ऑप्शन है उसको हैंड को रेज करो और टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे, आपके आंसर, आपके डाउट्स क्लियर कराएगा। पर ये टेक्निक आप लोग नहीं फॉलो करते हो, एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू अंडरस्टैंड ए टॉपिक। सी टिक द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर ए। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, when we are asleep some parts of our body are when we are asleep some parts of our body are, option number A sleeping, option number B working, option number C resting. So when we sleep some part of our body are, देखो स्लीपिंग है, रेस्टिंग है, ठीक है, और वर्किंग है। देखो जब मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में इस चैप्टर को आवर बॉडी चैप्टर में भी बताया होगा तो मैंने बोला होगा कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन द ऑर्गन्स विच यू आर एबल टू सी, और इन एक्सटर्नल ऑर्गन के सबके इंडिविजुअल फंक्शन है। आइज से तुम देख ही सकते हो, तुम सोचो कि आज आइज को आराम दे देते हैं और इससे सुनने का काम कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनके इंडिविजुअल फंक्शन होते हैं। उसी समय मैंने तुम लोग को टीच किया था इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं? द ऑर्गन विच आर इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। एंड व्हाट इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ दिस इंटरनल ऑर्गन इज दैट वंस यू
टेक ए बर्थ, एक बार आप पैदा हो गए बेटा तो थ्रू आउट द लाइफ ये वर्क करते रहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ। अगर हमारा कोई भी इंटरनल ऑर्गन वर्क करना, अपना फंक्शन करना बंद कर देता है तो हम मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ठीक है। हमारा हार्ट है, हार्ट ने फंक्शन बंद कर दिया, सुनोगे बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। लीवर ने फंक्शन करना बंद कर दिया, किडनी ने फंक्शन बंद कर दिया। क्यों? आदमी मर गया, उसकी किडनी फेल हो गई थी, ठीक है, उसका लीवर फेल हो गया था, वो वर्क नहीं कर रहा था। तो इंटरनल ऑर्गन एक ऐसे ऑर्गन है बेटा कि जो आपके बर्थ के बाद थ्रू आउट ये लाइफ वर्क करते रहते हैं। अगर इनका फंक्शन बंद हो गया तो इसका मतलब दैट पर्सन इज नॉट लाइव, वो क्या हो जाएगा? डेड कर जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? व्हेन वी आर स्लीप सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर वर्किंग, ठीक है, कुछ बॉडी के पार्ट क्या करते हैं? वर्किंग करते हैं, ठीक है। जिनको किस कैटेगरी में हमने रखा बेटा? उसको हम लोग ने इंटरनल ऑर्गन्स के नाम से जाना, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। दे वर्क थ्रू आउट द लाइफ, ओके। नाउ द सेकेंड, second question, question number 2, the more physical work we do, the more energy is required by our body. The following food give us energy. Option A, rice, chapatis. Option B, eggs and cheese. Okay. Then option number third is the green leafy vegetables. Green leafy vegetables. Okay, so these are the three options, student. Now one by one we will discuss which is the right. See, first of all understand the meaning of the question. The more physical work we do, the more energy is required by our body. Especially मैंने कहा था कि स्मॉल चिल्ड्रन वो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते कूदते हैं, तो उनको भी इस फूड की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। एंड द सेम मैनर विच डू हार्ड फिजिकल वर्क, जैसे रिक्शा वाला है, 3-4 लोगों को अपने रिक्शे पे बैठा के जा रहा है, जैसे आप ऑटो में जा रहे हो, वैन में जा रहे हो, स्कूल बस में जा रहे हो, वहाँ तो पेट्रोल से चल रही है वो सारी चीज़ें, मैन मेड थिंग है, उनमें इंजन्स लगे हैं, पेट्रोल से चल रही हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जब आप अब कोई रिक्शा वाला 2-3 लोगों को ले जा रहा है तो वो अपनी मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, अपनी बॉडी की जो पावर लगा रहा है वो मस्कुलर फोर्स से मूवमेंट करा रहा है उसकी, ठीक है। आप रेलवे स्टेशन पे चल रहे हो, जो पुलिस देखने को मिलते हैं जो इतना ज़्यादा सामान अप एंड डाउन ट्रेन में करते रहते हैं, ठीक है। और जहाँ बिल्डिंग हो रही है, जैसे आपका घर ही बन रहा हो, तो वहाँ पे जो देखते होगे कितना हार्ड वर्क करते हैं मजदूर लोग, ठीक है। तो बहुत से ऐसे वर्क हैं जिसमें हम बहुत हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। नाउ इट इज़ आस्क इन द क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ ए फूड वी ईट,
सो दैट वी गेट एनर्जी, क्योंकि फूड में मैंने आपको एकदम क्लियर बता दिया है, एनर्जी गिविंग फूड अलग है, बॉडी बिल्डिंग फूड अलग है, और प्रोटेक्टिव ऑफ फूड अलग है। ठीक है, तो एनर्जी गिविंग फूड के न्यूट्रिएंट्स का क्या नाम है, आई होप आपको याद होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है, और आपको कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीरियल्स में मिलता है। सीरियल्स मतलब होते हैं अनाज, जैसे आपका राइस है, व्हीट है, ये क्या है, अनाज है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एग और चीज, एग चीज इज नॉट ए राइट आंसर। मैं ऑप्शन नंबर बी से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए राइट है, और ये क्यों नहीं राइट है तो इनको पहले डिक्टेट कर देता हूं। एग्स एंड चीज, ये दोनों किसने है, प्रोटीन, प्रोटीन मिलता है इससे, एग्स और चीज से। ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड के उसमें आते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये आ जाएंगे आपके विटामिन और मिनरल्स में। ठीक है, आपके विटामिन और मिनरल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आएंगे। नाउ कम टू फर्स्ट वन, राइस एंड चपाती। यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट फूड आप कौन सा होता है, जो सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स का मतलब होता है जो अनाज है, तो बेटा इसको अनाज है, राइस के अनाज की कैटेगरी। चपाती, हम व्हीट को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, और उसके बाद फिर उसकी रोटियां बना के खाते हैं। ठीक है, तो राइस एंड चपाती कैसे फूड है, ये एनर्जी गिविंग फूड है। तो इसलिए द मोर फिजिकल वर्क वी डू द मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अगर हम बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि अरे आज ये फेस्टिवल है, दिवाली आ गई, पूरे घर की सफाई करनी है, पूरे घर के पर्दे धो दिए, पेंट्स किया, अपने से वॉल्स पेंट कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करते हो, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो आप किस तरह की डाइट लोगे, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, तो वो मिलेगा आपको राइस और चपाती से। ठीक है, राइस और चपाती इज द राइट आंसर। कर लो बेटा ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फूड आइटम दैट कंटेन अबाउट 96% ऑफ वाटर। वन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द फूड आइटम, वन ऑफ द फूड आइटम items that contain about 96% of water is, okay, mango, beet, cucumber, and C is the eggs. Okay, so one of the food item which has which contain 96% of water, ये ऐसी फूड आइटम है जो आप खाते हो उसमें 96% वाटर है। ठीक है, तो मैंगो इज नॉट ए राइट आंसर। ठीक है, एग इज आल्सो नॉट ए, क्यूकम्बर इज द राइट आंसर। जो आप लोग खीरा खाते हो ना बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो स्पेशली ये समर में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा वेदर हॉट होता है, लॉट ऑफ वाटर लूज फ्रॉम आवर बॉडी, और इसीलिए समर में हम लोग वाटर मिलन भी बहुत खाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा वाटर होता है, इसीलिए उसका नाम ही वाटर मिलन हो गया। ठीक है, बट वाटर मिलन इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, सो दिस इज द राइट आंसर, क्यूकम्बर इज द राइट आंसर। अच्छा, नेम द फॉलोइंग। नाउ we have to tell different food group is given, energy giving food, protective body building food, and protective food. You have to tell which type of food we eat so that we get this energy giving food. You have to tell the name of two energy giving food, you have to tell the name of two body building food, and you have to tell the name of two protective foods. So this is the next question. Okay,
Name the following. Firstly, you put a new heading. Question number B. Name the following. Name the following. Two energy giving foods. So we have to write the name of two energy giving foods. Okay. So energy giving food इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की. ओके. सो वन इज पोटैटो. सबसे ज्यादा बच्चों को आलू पसंद होता है खाने में. बच्चे सब्जी में बहुत सी सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं तो आलू निकाल के खा लेते हैं, बाकी सब्जी उनको टेस्टी नहीं लगती. सो पोटैटो इज एग्जाम्पल and sugar. Potato and sugar are the example of carbohydrates. Okay. Two body building foods. Two body building foods. So टू बॉडी बिल्डिंग फूड में आप लोग बॉडी बिल्डिंग फूड है तो एग भी लिख सकते हो, चीज़ भी लिख सकते हो, मिल्क भी लिख सकते हो. ये सब क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है. ठीक है. छोटे बच्चों को बहुत मिल्क दिया जाता है क्योंकि उस समय उनकी क्या हो रही होती है? ग्रोथ हो रही होती है बॉडी पार्ट्स की. ठीक है. ग्रोथ होती है, उनकी हाइट बढ़ती है. ठीक है. और प्रोटीन ही में से फॉर्मेशन ऑफ ए मसल्स, फॉर्मेशन ऑफ ए बोन्स, repairment of a damaged cell, formation of a new cell, your skin, your hair, your nails, all these are made of a protein. ठीक है. इसीलिए से बोला गया बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि बॉडी बहुत स्मॉल पार्ट से बनी है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स बोलते हैं. ठीक है. तो सेल्स आपके प्रोटीन के बने हुए हैं. ठीक है. तो दैट इज द रीजन बॉडी बिल्डिंग फूड एंड मिल्क यू कैन राइट. और टू प्रोटेक्टिव फूड्स. ओके. तो प्रोटेक्टिव फूड बेटा आपको कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स खाने से मिलते हैं. ठीक है. एक तो हो गया फ्रूट्स में होते हैं और दूसरा क्या होता है? वेजिटेबल्स में. तो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आप लोग को क्या मिलता है? प्रोटेक्टिव फूड. सो आप लिख सकते हो, एक फ्रूट का नाम लिख लेते हैं और एक वेजिटेबल का नाम लिख लेते हैं. फ्रूट में मैंगो लिख लो, स्पिनच लिख लो जो साग होता है. ठीक है. टू प्रोटेक्टिव फूड मैंगो और स्पिनच लिख लिया. जो डिफरेंट टाइप्स के आप लोग साग खाते होंगे ना, उन्हीं को बोलते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका. पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. सर्किल द ऑड वन आउट. ओके. इन दिस नेम ऑफ द फ्यू फूड आइटम इज गिवन. आज जैसा कि हम लोग को अब ये बात पूरी नॉलेज हो गई है कि वी गेट दिस न्यूट्रन बाय ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए फूड. सो इन दिस क्वेश्चन नंबर सी, सर्किल द ऑड वन आउट. सो इसमें हमें जो इस मतलब 4 फूड्स के नाम दिए हैं, तो जो कोई एक फूड ऐसा होगा जो इस कैटेगरी से अलग होगा, तो उसी को हम लोग को क्या करना है बेटा? सर्किल करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है
पहले ओरली डिस्कस कर लेते हैं। बनाना, शुगर केन, नट्स और पोटैटो। सो इसमें बनाना अलग है, क्यों? क्योंकि बनाना क्या है, ये तो आएगा आपका विटामिन मिनरल्स में, क्योंकि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलता है। और जो शुगर केन और नट्स और पोटैटो, ये कैसे फूड है, कार्बोहाइड्रेट है इनमें, ये एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, ओके, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।